लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग के बाद कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सीपीआई की एनी राजा चुनाव मैदान में है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने बेंगलुरु ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी मांड्या सीट से जेडीएस के उम्मीदवार हैं। अभिनेत्री से नेता बनी हेमा मालिनी 2014 से मथुरा से लगातार सांसद हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर से है। योगी मोदी जी की जोड़ी की वजह से ही हम लोग जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने हम जो चाह रहे थे यहाँ पे काम करना, वो सारा काम इसलिए हुआ कि उन लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। योगी जी ने सपोर्ट किया, मोदी जी ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, अभी और भी डेवलपमेंट होगा उनके मदद से। बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कर्नाटक सरकार में मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या रेड्डी को कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया है। Voting is not just a privilege, voting is our responsibility. Bengaluru, remember that today is not a long weekend, today is not a holiday, but it's the day that we are collectively deciding the future of this country, our collective destiny for the next 5 years. So please go out and vote, because every vote matters. If you don't go out and vote, you're incentivizing indirectly electoral corruption. You are incentivizing indirectly dynasty politics. You are incentivizing indirectly bad governance. Please vote, because every vote has the same value. It is the biggest celebration of equality, because every person is treated on the same pedestal. Every vote has the same value. So please go out and add value to this nation. तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के उम्मीदवार शशि थरूर का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से है। दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। As far as I'm concerned, I think the people of Thiruvananthapuram have entrusted me with their faith in 3 successive elections, and I'm very confident that they will continue to do so in this election. So I have been the length and breadth of the constituency many times in the course of the last 15 years, but more particularly in the last 45 days. And what I've seen gives me not only confidence but assurance that the faith they have placed in me, they will continue to place in. I have started this very important day in the history of Thiruvananthapuram, and indeed my own political career with visits to Vettukad Church, and then to Parangadi Ganapati Temple, and now to Padmanabha Swami Temple here. And I have sought the blessings of the Lord Almighty in my mission, in our party's mission to help transform people's lives, to create development and economic opportunity for all people. And I am very confident that people of Thiruvananthapuram want change in these elections, and that these elections are an important elections for all of us, including them and their children and their families. I appeal to all the voters to come out and vote. It is their fundamental duty under the Constitution of India to come out and vote. Let us celebrate our democracy. Let us make our democracy stronger by coming out and voting, and hopefully voting for change. रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा और बीएसपी के देवव्रत कुमार त्यागी से है। अपना अपना वोट जरूर डालें। वोट हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, हमें उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को भी जीत का भरोसा है। वैसे यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। मैं एक लोगों का दिल जीता हूं, चाहे वो मुसलमान हो या दलित आदिवासी हो, सब 90%। सर मैं यादवों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पूरा देश की बात कर, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। एक तरफा से बात सर बिल्कुल है। उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है, हर कीमत पर है। वो उनके ब्लेसिंग के कारण ही मैं आज भी कांग्रेसी हूँ। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर ना बीजेपी के वोटर पप्पू यादव के साथ, उसके वर्कर मेरे साथ, सारे लोग मेरे साथ, कोई दल की राजनीति नहीं। मैं बहुत क्लियर हूँ और मैंने साफ शब्दों में कहा कि दिल सब जीत चुका हूँ।
दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीटें, मध्य प्रदेश की 7 सीटें, असम और बिहार की 5-5 सीटें, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर वोट डाले गए। इनके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की एक-एक सीट पर भी वोट डाले गए।